أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمد الحمدللہ للہ علی کل حال۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. بے شک. چلیے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی ہنستے مسکراتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھے انشاءاللہ، اور جنتوں کے ساتھی بنائے. ہماری آج کی جو کلاس ہے آمین آمین۔ یہ ہماری کورس کی تو سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. ویسے ریویژن کی انشاءاللہ 2 کلاسیں ہماری ہوں گی اس کے بعد، کیونکہ تھرسڈے کو ہمارے انشاءاللہ 10 پیج اور اشارے مکمل ہو جائیں گے. ہم نے جو 20 اشارے اپنے، یعنی کہ 5 پیجز کو جو ہم نے 20 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آج ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ 19واں اشارہ ہے اس حساب سے. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہمارا صفحہ نمبر 10 اشارہ سی، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات کریں گے. آئی تھنک 74 ہے یا 73، 4 دیکھتے ہیں وہ کہ دونوں ہے یا ایک ہے، یا ایک کے ہم نے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے. ابھی سسٹر کہہ رہی تھی ہم نے بہت سارے افعال کر لیے، کرتے ہوئے پتہ نہیں چلا، لیکن جب ہم اس کو تیاری کرتے ہیں کورس کی، یا ہم اس کو ایک دفعہ پیچھے ریویو کریں، جو ہم شروع کر لیں، سمجھ لیں QC 1 سے شروع کریں، وہاں سے لے کے اب تک آپ نے جتنے افعال کر لیے، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پورے قرآن کا ایک طرح سے جتنے افعال نچوڑ کر لیا. اب کیا کرنا، اب ان پہ آپ نے سارے اپلائی کرتے جانا. کوئی تھوڑے بہت اس طرح کے آئیں گے کہ جو آپ کو ان پیٹرن سے تھوڑے سے الگ لگیں گے، جن میں اکثر آ جاتے ہیں جن کے حروف مادہ میں 4 ہو جاتے ہیں حروف. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے کوئی ہوں گے جن میں 5. تو زیادہ جو ہیں صحت مند، ثلاثی مجرد اسی میں آ جائیں گے، پھر کمزور اور مزید بھی. انہی کو ہم نے دہراتے رہنا ہے. اور اگلے جو ہمارے پیجز ہوں گے سورہ البقرہ کے اگلے جو 5 پیجز پڑھنے، وہاں پہ ہم نے یہ سارے جو افعال ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے. اور باقی جو تھوڑی بہت گرامر رہے گی، جیسے مجہول کے سیغے ہیں، مؤنث کے سیغے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا. انشاءاللہ QC 5 میں آپ یہ ساری چیزیں اپلائی کریں گے، اور QC 6 میں انشاءاللہ جب آپ لوگ پہنچیں گے، آپ کو یہ جو جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اس کا بہترین فائدہ نظر آئے گا. آپ کو یاد آئے گا کہ یہ چیز ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھی تھی، تو یہ کتنی اچھی طرح سے پکی ہو گئی. اور اس کے بعد انشاءاللہ QC 7 میں ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم سب رہیں، بیچ میں چھوڑ نہ دیں، گیو اپ نہ کریں. اور جہاں پہ مشکل آتی ہے تو مشکلوں کو ہم نے خود آسان کرنا ہے. کہتے ہیں نا، اپنی جو مشکل کو اپنی طاقت بنا کے انشاءاللہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو پڑھانے کی نیت بھی کر لیجئے کہ ہم سب نے پڑھانا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے جیسے ہم کرتے ہیں اپنے کورس کا آغاز، اپنے کلاس کا، ہم نے QC 1 میں سورہ فاتحہ کی، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کو ہم نے QC 2 میں دیکھا. اس میں 12 اچھی عادات سیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے جو 5 پیجز پڑھے تھے ان میں ہم نے ہدایت کی بات کی. ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کس کو نہیں ملے گی؟ کافرین اور منافقین کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شک کیا اللہ کی کتاب میں. اس کے بعد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے بارے میں سیکھا کہ وہ پہلے انسان جنہیں ہدایت نصیب فرمائی گئی. اس کے بعد ہم کر رہے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ پر اپنا QC 3، اور آج ہمارا QC 3 الحمدللہ، جب میں آپ کو ایسے ہاتھ دکھاؤں تو پھر مجھے سیدھا اس طرح سے نظر آئے گا کہ ہم نے یہ اشارے یہاں سے شروع کیے اور اب لاسٹ پر پہنچ گئے. ہم اس طرح سے جوڑ کے دیکھیے اپنے ہاتھوں کو. پہلے 5 پیجز کر لیے، یہ اگلے 5 پیجز. تو انشاءاللہ یہ ہم آج اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں.
ایک دفعہ ان اشاروں کو ہم کر لیتے ہیں ریوائز. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو. فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو. بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ اور سزا. عام قاعدہ, طور کا وعدہ, ہفتہ کے مجرم, بقرہ کا قصہ. اس کے بعد ہم نے جو 4 اشارے کیے ہیں وہ تیسرا سوال, قاتل کون, سخت دل, کلام تبدیل. تیسرا سوال قاتل کون جی ہم کر چکے. آج ہم نے اپنا جو اشارہ کرنا ہے سخت دل, یا صرف آپ اس کو دل سے کے نام سے بھی یاد کر لیں, زیادہ جلدی یاد ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ہم لفظ پڑھیں گے قلوب کا. ٹھیک ہو گیا جی. سوال, قاتل, دل, تبدیل, آسانی سے یاد ہو جانے والے 4 ایک جیسے ہم وزن الفاظ. اچھا جی, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا, کیا تعلق تھا. اچھا جی, پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں بنی اسرائیل کو, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نافرمانی کی اور ہدایت حاصل نہیں کی. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل نرم نہ ہوئے بلکہ وہ سخت دل ثابت ہوئے. یہ آج کی جو ہماری ہے پوری کی پوری 74 آیت مبارکہ, اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیں گے تاکہ ہم آسانی سے ان سارے افعال کو بھی سمجھ سکیں اور ان کے اندر ہم نے جو ٹکڑے بنانے ان کو سمجھ سکیں, اسماء کو دیکھ سکیں. پہلے ہم اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے. حالانکہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں کتنی نظر آتی ہیں, اور ان کے لیے تو وہ ایسی بھی تھیں جس پہ ہم کہتے ہیں نا کہ غیب پر جو ہم ایمان لائیں, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی ظاہر کر دی تھی. اور اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے, یعنی کہ چرند پرند, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے. اللہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے. اچھا جی, یہ اس کے جو سائڈ پہ نمبر لکھے نا, اس کو ایک دفعہ ذرا چھوڑ کے آپ اندر سے مجھے دیکھ کے بتائیں, آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی نیا لفظ ہو اس میں. جی, کوئی نیا لفظ نظر آ رہا ہے آج؟ ویسے مجھے تو نہیں نظر آ رہا. چلیے, یہ تو یہ الحمدللہ. قصد کیا ہے, قصد قصد اور اسی کا ہی ہو جائے گا قصوہ. اور باقی دیکھیے گا, یہ جب ہم پڑھیں گے نا اس کو, تو باقی جو الفاظ ہیں وہ سارے ہمارے کچھ اردو سے ریلیٹ ہو جائیں گے, کچھ ہمارے افعال جو ہم پڑھ چکے ان کے اوپر وہ فٹ آ جائیں گے. اچھا جی, ہم ایسا کرتے ہیں یہیں پر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اچھا جی, یہ سما سے شروع ہو کے تو عملون تک. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. اچھا جی, وہ خود ہی میں نے پینسل سے بنائے ہوتے ہیں تو وہ میں نے اس پہ تشدید پڑھ دی تھی لما پر, اور یہ لما ہے, لما نہیں ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں ایک ایک, ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم حروف بھی دیکھ لیں گے.
کہ ایک لفظ کے اندر جو حروف ہیں ان میں جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ہمیں افعال کا پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے ہے سما. سما ہم سما امین سے یاد رکھتے ہیں کہ دوبارہ یا پھر سے وہی جو ہم کہتے ہیں نا بات, تو اس میں تاکید کے لیے سما کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے قصد. اچھا جی, قصد اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے اپنا ٹیبل پڑھا ہے دعا. دعا یدعو ادعو داعن مدعون اور دعاءن. اب یہ بن جائے گا قصا یقصو اقصو قاسن مقصون اور قصوتن. قصون بھی ہے اور قصوتن بھی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے قلوبکم. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت, اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں. اچھا جی, اب ہے مم بعدی. قلوبکم مم بعدی ثم پھر قصد سخت ہو گئے. اب یہ جو قصد کون سا والا سیگا ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ دعا جیسا ہے. اب دعا کے ٹیبل میں اس کو ہم کہاں فٹ کریں گے؟ مونس میں ماضی یہ ہو گیا ماضی کا جیسے تھا, مونس. بالکل جیسے تھا ہمارے پاس دعت. ٹھیک ہو گیا, سخت قلوب کی ہو وجہ گئی. سے. کوئی آپ کے ذہن میں اس سے بات آ رہی ہو, یہ مؤنث پھر سخت ہو گئے, تو اس کا معنی کیا ہونا چاہیے قصد کا؟ جیسے قصا وہ سخت ہوا, سخت ہو گئی. وہ مس سخت یہ ہوا. قلوب جو ہے دل کے لیے, شاید اس لیے ہی اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. وہ الحمدللہ. سخت ہوئی. اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ قلوب ہے, یہ مؤنث ہے. یہ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے, یا عربی زبان کا کہہ لے ایک قاعدہ ہے کہ ایک ہم جمع مکسر بناتے ہیں, ایک جمع سالم ہوتی ہے نا. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ آئیں گے جس میں ہمیں مؤنث نظر آئے, تو ہم نے سمجھ جانا ہے کہ آگے کچھ ایسا جمع والا قاعدہ ہوا ہے کہ جمع تو آ رہی ہمیں نظر, وہ آ رہی ہے کہ قلب قلوب دل کو کہتے ہیں, اور دل کو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ مؤنث ہے. تو انشاءاللہ QC4 میں ہماری بہت ساری گرامر جو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہو جائیں گے ہمارے کانسیپٹس انشاءاللہ. ابھی کے لیے یاد رکھ لیں کہ ہم نے مؤنث کا جو صیغہ یوز کیا ہے وہ اس وجہ سے یوز کیا کہ قلب کی جمع قلوب ہے. اب قلوب جو ہے اس کو ہم نے گرامر میں جب کوئی صیغہ دینا ہے تو وہ ہم نے مؤنث والا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب قلوب اور کم, یہ ہمارے پاس دو الفاظ, یعنی کہ قلوب اور کم دونوں اسماء آ گئے, یعنی کہ اب ہم اس کے دو ٹکڑے ایزیلی بنا سکتے ہیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل, مم یہ ہم نے پڑھا ہوا, یہ وہی من ہے. اس کے بعد جو یہ جو تجوید کا قاعدہ اس کی وجہ سے ہم اس کو مم پڑھ دیتے ہیں, تو وہ جو ایک نون ہے غائب کر دیتے ہیں, یہ وہی والا من ہے, سے والا. اچھا جی, بعد کوئی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ذالکا. ذالکا وہ. ٹھیک ہو گیا جی. فاہیا, فا اور ہیا ہم دو بنا لیں گے اس کے ٹکڑے, تو وہ ہیں کل ہجارتی. اب یہ جو ان کے دل کے لیے بھی دیکھیں کہ ہیا کا ہی آ گیا نا, جو ہم نے ضمیر یوز کی وہ بھی ہیا کی, جو ہم نے ماضی والا صیغہ یوز کیا وہ بھی ہم نے مؤنث والا یوز کیا. اچھا جی, پتھروں کی مانند. او ہم اس کا ترجمہ کریں گے یا. کوئی اور مثال سامنے آئی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, جہاں سے آپ کو او کا اور اچھے سے یاد ہو جائے گا. ویسے QC2 میں بھی پڑھ کے آئے, اگر کسی کو اس دوران یاد آ جائے آیت مبارکہ تو شیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد ہے اشد. یہ میم یہ جو ایکسکیوز می میم یہ جو کل ہے یہ کاف الحجارہ تو وہ ہوا, اور کاف یہ جو آپ کے لیے ہوتا ہے یہ کا کس ساؤنڈ کرے گا کل کا کا؟ جیسے کہ جیسے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے, کا بھی ہوتا ہے, کما بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کما کہاں پڑھتے ہیں, کا شاید جلدی نہ یاد آئے, کما کا یاد آنا چاہیے فٹافٹ. جی جیسے کما ہاں صلیتا. سلیتا. ٹھیک ہے, اس کو بس ابھی سے پکا پکا یاد کر لیجیے. یہ ہاں بھی قرآن میں ہے کما موسا, ہاں جیسا جی, موسا سے جہاں بھی پوچھا. کما اور کا آئیں گے نا, آپ نے دیکھنا یہ شروع میں آئے ہیں, ضمائر شروع میں نہیں آتے.
ठीक है। जमायर कैसे आते हैं, ये जुड़ के आते हैं, ये बाद में आते हैं। ये है जैसे हम पढ़ते हैं का, और इसी तरह से हम पढ़ते हैं जी, हु पढ़ते हैं, ये सारे आगे आते हैं, ठीक है। जब ये लिखे होते हैं ना, ये जब पूरी टेबल हम शुरू करते हैं QC1 में, तो ये ऐसे लिखे हुए होते हैं। ये हु लिखा था, इसके साथ एक छोटा सा ये भी बना देते हैं ताकि पता चले कि कुछ पीछे जुड़ सकता है। इसके साथ भी कुछ ऐसी छोटी सी चीज बनाते हैं ताकि पता चले कुछ जुड़ने लगा है इसके साथ। इसके बाद कौन सा आता है, का, ठीक है, इसके पीछे भी कुछ जुड़ जाता है। फिर या, इससे भी, इसे में पता चलता है कि कोई एक चीज आएगी, कोई इसम आ जाएगा या कोई हर्फ आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं दीनूहू, जैसे हम कहते हैं लहू, ठीक है। जैसे हमने कहा था इयाका, तो ये जो जमीर है ये बाद में आएगी, जो पहले वाला उसका माना होगा जैसे। ठीक हो गया जी, यहां तक ये क्लियर है, तो इसको हम कर देते हैं फिलहाल वे। अच्छा जी, इसके बाद है औ अशद्दु। अशद्दु कहते हैं कि ज्यादा सख्त हो जाना, इसमें आप समझ लें कि कंपैरिजन वाला माना आ जाता है। तो आगे है कसवत। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, फिर सख्त हो गए, ये है कि इतने सख्त के शदीद सख्त हो गए। और वो कितने, वो अब आगे बताया जा रहा है। वो इन्ना, वा और इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारा। अब पत्थरों के भी आगे किसने है, मिनल हिजारा, कुछ पत्थर, ल और मा, इसको भी अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ल और मा, ल अलबत्ता के लिए, जैसे हम कहते हैं लक़द काना, वो भी हमने इसी तरह से पढ़ा हुआ है ना। अब इस ये एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए आ गया। इसके बाद है यतफज्जरु, एक हमने इससे मिलता जुलता टेबल पढ़ा है, फज्जरा, इनफजरा, फज्जरा। ठीक है। रूट लेटर जो इसके हैं वही इसके होंगे। अब ये टेबल जो है ये आ रहा है तदब्बरा के पैटर्न पर, तदब्बरा, ठीक है। ये बन जाता है तफज्जरा। अब अगला मुझे बताएं, इसको छोड़ दें, आप बताएं, अगर तदब्बरा का था या तदब्बरू, तो इसका क्या बनना चाहिए, यतफज्जरु। या तफज्जरू। अच्छा जी, एक हमने टेबल इत्तक़ा का भी किया था, उसमें हमने कहा था थोड़ी तब्दीली आई है। एक हमने टेबल किया है फद्दरा, ठीक है। इस इद्दौरा, सॉरी, ये फा तो उसका दूसरा था, ये तो उसके साथ हमने एक जोड़ा था हर्फ। हमने कहा था तदारसा की तरह है, तदारआ है, लेकिन इसको तब्दीलियों के साथ इद्दौरा भी पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये टेबल भी, वो तदारसा पे था, ये तदब्बरा पे है, ठीक है। ये ता वाले जो टेबल है, या तो ये तदारसा पे होते हैं या फिर ये तदब्बरा पे होते हैं। अब यहाँ भी वही बात हुई है कि कुरान मजीद में कभी कभार ऐसा होता है कि अब जैसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था जैसे है तफज्जरा या तफज्जरा, और इसके लिए बाज दफा सिर्फ तफज्जरा भी यूज कर लेते हैं। रू, मैं इसको ये मैं तब बोल रही, ठीक है। ये आपका आ गया यतफज्जरू। अब ये जो है इनफजरा और ये जो तफज्जरा में फर्क क्या है, इनफजरा हमने कहा था वो फूटा, यानी कि जैसे इनकिलाब में हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है अपनी कोशिश से, ठीक हो गया। लेकिन ये कि यहाँ पर क्या है, उनमें से फूट पड़ती हैं नहरें। अब ये जो एफर्ट लगाई है ये नहरों ने लगाई है, ठीक है। अब ये जो यतफज्जर में ऐसे नहीं हुआ कि ये पत्थर खुद ब खुद फट गए हैं। ये कैसे फटे हैं, ये फटते हैं जब उनमें से नहरें, अब ये जो, यानी कि इसमें ये आ जाएगा कि इसमें अपनी एफर्ट नहीं होगी, बल्कि ये खुद से, ठीक है, खुद से ये काम हो जाएगा। जैसे तदब्बुर में खुद आपने गौर व फिक्र करना है,
इसी तरह से तफज्जरा में ये होगा कि वो नहरें फूटती हैं, उनसे वो पत्थर फट जाते हैं। इसको हम करते हैं रेज, ठीक है। और अगर हम इसका बनाए 6 चाबियां, तफज्जरा या तफज्जरा, इसके बाद तफज्जर, इफ मुतफज्जिरुन, मुतफज्जिरुन, और इफ्तिजार अगला क्या बनेगा? अगला क्या तदब्बुर पे बनाए? तफज्जुरु तफज्जुर, तफज्जुरु तफज्जुर। और ये जो अभी आप मेरे ख्याल से सिस्टर मनीषा की आवाज आ रही है, ये मेरे साथ भी होता है। मेरे ज्यादातर जो आते हैं इफ़आल, या तो मुझे वो तफ़ईल पे लगते हैं या फिर वो मुझे सारे इफ़आल पे लगते हैं। तो इसको हमने लेके आना है तफ़अउल पे। तफ़अउलुन, ठीक है। ये हमारा मेन बाब है और इसका जो कोड होगा वो होगा तदब्बर। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मिन्हु 2 टुकड़े कर लेंगे, अल अनहार। अच्छा जी, अल अनहार, इसकी जमा क्या, ये जमा है या वाहिद है? ये जमाए और इसकी वाहिद क्या होगी? नहर नहर नहर। होगी। अब अगर यहाँ पे अल अनहार है तो हम यहाँ पर भी अल नहर कर लेंगे। और आप इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। जैसे आप ये वाली जो अलिफ है ना, इसी को आप बड़ा कर लें तो ये रॉ से अलग हो जाती है, ठीक है। ये वही अलिफ ही है, ये इसको कह देते हैं कि ये खड़ी जबर, ये असल में अलिफ के कायम मुकाम है, ठीक हो क्या जी। तो जब अल अनहार होगा तो ये आपने, अगर आपको आ जाता है क्विज में या होमवर्क में, तो बड़े ध्यान से इसको नहर नहीं समझना, बल्कि ये जमा का सीगा होगा। अच्छा जी, देखते हैं इसको। बल्कि इसको हम रेज कर लेते ताकि अगला हम अच्छे से देख सकें। आज लैपटॉप भी जरा हमारा अपडेट हुआ है, इस वजह से कुछ चीजें उसमें आगे पीछे हो रही। चले हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अब आपने ये वाला फिक्रा याद रखना है, इसमें से नहरें फूट कर निकली थी तो फिर वो पत्थर फट गए थे। अब आपने ये एक किस्म, आपने इसकी एक अलहदा से याद कर लेनी है। अच्छा जी, मुर्दे का जिंदा होना, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने बकरा, एक गाय ज़िबा की, फिर उसका टुकड़ा मारा, मुर्दे को, वो जिंदा हो गया, कातिल की निशानदही हो गई। उससे पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको मुश्किलात से निकाला था और उन्होंने तरह तरह की नाफरमानियां की, उसके बावजूद उनको माफ भी किया, उसके बावजूद बनी इसराइल ने कोई सबक हासिल नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह से डरते और अपने रवैयों को दुरुस्त करते और उनके दिलों में नरमी पैदा हो जाती। बहरहाल जब अल्लाह की तरफ से दिल नहीं पलटते तो इसका मतलब है कि दिल सख्त हो गए। हम जो बार बार कहते हैं ना अपने लिए हिदायत की दुआ करनी, तो ये भी जरूरी है। इसके लिए बेहतरीन दुआ कौन सी है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह की मर्जी रजा के बगैर ना तो हिदायत मिलती है और ना ही ये है कि हम गुनाहों से बच सकते हैं। दिलों के सख्त होने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग अल्लाह से डरते नहीं थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि उन्हें अल्लाह का, ये इनके मतलब नहीं कि अल्लाह का डर नहीं था, अल्लाह से मोहब्बत थी और ना ही उनमें कोई आजिज़ी थी। उनके दिल असल में ये हो गया था कि अल्लाह की याद से खाली हो गए थे। कहीं सोचते भी थे कि हो सकता है कि ये जो सारे इनके ऊपर अजाब वगैरह आए हैं, अब उनके अंदर क्या था, अल्लाह ताला का डर इस तरह से नहीं रहा था कि उनको ये बीच में लगता था कि ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते हैं ये शायद अपने पास से ले आते हैं। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने उनके दिखाया, सामने निशानियां भी दिखा दी, लेकिन ये कि अब वो ऐसे हो गए थे, इतने सख्त दिल कि बिल्कुल पत्थरों जैसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि पत्थर भी ऐसे हैं कि जिनमें से नहरें फूटती हैं। यानी कि अब हम एक और भी बात करते हैं कि जैसे कहते हैं ना, मुसलसल पानी पड़ता रहे तो सुराख हो ही जाता है। अब इनके दिल इस तरह से हो जी। गए थे कि वो उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थे। जब कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अंबिया की तौहीन करता है, अल्लाह के अहकाम का मजाक बनाता है, तो फिर कोई निशानी या दलील उसको फायदा
نہیں پہنچا سکتی. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر وہ جب گناہ چھوڑ دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا. ایک دفعہ گناہ کیا, ایک نقطہ بنا, اب جتنی دفعہ گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ مزید پھیلتا جائے گا, اتنا پھیلے گا کہ یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے گا. اب یہی ہے وہ رون. رون کیا ہے؟ بل رون. یہ جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا, کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. سورہ المطففین میں دیکھیے گا, کلا بل, یہاں تک رک کے پھر آگے ران علی قلوبہم, کہ یہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات کوئی اثر نہیں کر رہی. یا یہ کہ ہم کہیں کہ ان کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے ہدایت کے لیے یا تبلیغ کے لیے بھیجا تو ان کی کوئی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی تھی. اس کے بعد ہے پتھروں سے پانی نکلنا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو وہ جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. یعنی کہ پانی کے اور تیل کے تمام جتنے بھی ذخائر ہیں نا, یہ در حقیقت پتھروں میں ہی ہوتے ہیں. یہ جب ہم بورنگ وغیرہ کرتے ہیں نا, یہ بھی جب نیچے پانی, یہ اللہ تعالیٰ نے سارا ذخیرہ جو ہے یہ پتھروں میں کیا ہے. اب یہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ زیادہ بات مطلب بتائی بھی جاتی ہے کہ اگر پتھر والا نیچے سے اگر نکل آئی ہے زمین تو وہ پانی زیادہ بہترین ہوگا. اچھا جی, اب جب کھدائی کریں ہمارے یہاں تو پانی ہی نکلتا ہے. جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تیل کے ذخائر رکھے ہیں وافر مقدار میں, تو وہ جب کھدائی کرتے ہیں تو تیل نکلتا ہے. تو یہ در حقیقت پانی اور تیل یہ پتھروں میں سے ہی نکلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ساری کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے. علم میں آپ میں سے اب کوئی ایک سسٹر آئیں گی, تلاوت کر لیجئے اگر آپ شوق سے کرنا چاہتی ہیں, اور ساتھ پھر ترجمہ بھی کر لیجئے گا. پھر ہم بریک پہ جائیں گے. سسٹر فیروزہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. جزاک اللہ, جزاک اللہ, میں ماشاء اللہ. یہیں تک. ہاں جی, ابھی یہیں تک. ابھی اس کے بعد ہم نماز کے بعد اگلا حصہ کریں گے. آپ اب چلیں, آپ میوٹ کریں, آپ کسی اور سسٹر سے ترجمہ کروا لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے جی. سسٹر نگہت کر لیں. سسٹر کومل سے ہم اگلی تلاوت کروا لیں گے. ثم پھر کست سخت ہو گئے, قلوبکم تمہارے دل, من بعدی اس کے بعد, فہیا تو وہ ہیں, کل حجارہ پتھروں کی مانند, او یا اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت, وَإِنَّ اور بے شک, من الحجارہ کچھ پتھر یا کچھ پتھروں میں سے, لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹتی ہیں, منہ ان سے, الانہار نہریں. صدق اللہ العظیم. ثم الحمدللہ. اچھا جی, یہاں پر ہم بریک کریں گے نماز کے لیے. اور یہ جہاں پہ سسٹر نے ابھی آپ کو ترجمہ بتایا, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, تو پتھروں میں سے کچھ پتھر, یہ والی یہ ہماری روانی اور سمجھنے کے لیے, جیسے ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا نا کہ کبھی کبھی ہم ایسا کریں گے کہ عربی میں تو دیکھیں گے, اردو میں ترجمہ نہیں کریں گے, بالکل پورا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ بھی صحیح ہوگا. اگر اسی طرح سے کہ اگر پورا ہمیں روانی سے سمجھ میں آ رہا وہ بھی ٹھیک ہے, دونوں طرح سے, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ من کا اپنا بھی ایک ترجمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
इस तर्जमे की जरूरत उर्दू में यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं पड़ रही, तो अगर इसको इसके बगैर भी बना लेंगे तब भी बेहतर है, इसके साथ बनाएंगे तब भी ठीक है। ठीक हो गया जी सिस्टर्स। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अपनी ब्रेक, और अभी है टाइम हमारे पास 5:16, 5:30 पर आ जाएं वापस। ओके जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सारी सिस्टर्स आ गई होंगी, नहीं आई है तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टर्स आती रहेंगी, शामिल होती रहें जो हैं। अब हम उनके साथ आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हम सारा का सारा क्विज टाइप है, ये हम अपने असाइनमेंट्स में करते हैं। सब कुछ ये चीजें जो लिखी होती हैं इसको इसलिए हम स्किप कर देते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन था, हमने आधी मतलब आधा टुकड़ा कर लिया, एक में से 2 टुकड़े बना के एक टुकड़ा कर लिया। अभी हम अगले टुकड़े की तरफ आ गए। अब ये है, और बेशक उनमें से कुछ अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं तो निकलता है उनसे पानी, और बेशक उनमें से अलबत्ता वो हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। अच्छा जी, एक तरह की जो एक किस्म हमने पत्थरों की पहले पढ़ी, वो क्या है कि उनमें से पानी की नहरें फूट कर निकलती। अब ये दूसरा जो है इसमें हम देखते हैं वाह और बेशक। अच्छा जी, ऊपर ही रहते हैं, वाह और इन। अब नजर आएगा ठीक, वाह और इन्ना बेशक मिनहा। अब ये हा फिर उसके लिए यूज हो रहा है पत्थरों के लिए, मिनहा उनमें से कुछ, लमा अलबत्ता वो हैं जो यशक्कू। अच्छा जी, ये भी उसी तरह से है, तदब्बरा वाला ही पैटर्न है। तो इसमें यहाँ पे है जो, इसको अभी के अभी देख लेते हैं, बाद में फिर इसको चाबियां भी बना लेंगे। पहले हम इसको सिर्फ ऐसे खोल के देख लेते हैं। तो तदब्बरा, और ये है ओ, ओ, ओ। अच्छा, जिसके रूट लेटर क्या होंगे? शीन। शीन कॉफ कॉफ। ये इसके रूट लेटर हो गए। अच्छा जी, अब इसका हमने क्या बनाया था? मुदारे यतदब्बरू। यतदब्बरू, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए? यतशक्ककु य त शक्ककु। तो मैम ये ताशक्का को वो मजीद फी है। ये बिल्कुल यतदब्बरू, यानी कि ये मजीद फीही का टेबल है, और इसमें जो ज्यादती की गई, कमी की गई, उसको थोड़ा सा इस तरह से बदला है। अब यहाँ पर एक ये जो था ना शक्का, एक उसमें इजाफा कर दिया गया, ता को काट दिया गया,
اور आसानी के लिए ये अब 3 काफ हो गए ना, 1 काफ बढ़ाया हुआ है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पढ़ा जाए आसानी से। अगर आपको कहा जाए कि आपने तदब्बरा के पैटर्न पर तशक्कुक बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यही वाला टेबल बनाएंगे इसी तरह से। ठीक है, पूरा टेबल आपने फिर इसी तरह से बना लेना है। जैसे हम कहेंगे यतदब्बरु, यतशक्ककु, यतशक्ककूना, फिर आप में यशक्का वाला नहीं करेंगे। कुरान पाक में इस तरह से यूज होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ना इसमें ये हो जाता है कि ये जरूरी नहीं, यानी कि ये इसका लाजमी यूज नहीं है कि ये हम काटेंगे और इसको इस लफ्ज से तब्दील करेंगे। ये तब्दीलियां ली जाती है कुरान पाक से। कुरान पाक में इस तरह से यूज हुआ, फिर उसको माहिरीन उलमा वगैरह इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है और ये पीछे इसकी जो पूरी हिस्ट्री वो क्या बनती है। जाहिर सी बात है, हम लोग अरबी दान नहीं है, जो अरबी जुबान से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जुबान अरबी, उनको फिर ये सारी बारीकियों का पता होता है। तो अगर हम टेबल में यतशक्ककु लिखेंगे वो भी ठीक है, यशक्ककु लिखेंगे तो कुरान पाक के हिसाब से वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर तो आप लोगों की वर्कबुक में ये वाला लिखा हुआ है कि आप इस पे टेबल की 6 चाबियां बनाएं तो बना लें, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर इसको छोड़ दें। ठीक हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। जैसे है तशक्कका या तशक्ककु, इसके बाद बिल्कुल तदब्बर की तरह तशक्कक, फिर मुतदब्बिरुन, और इसके बाद जैसे मुतशक्किकुन, मुतशक्ककुन और तदब्बुरुन की तरह तशक्कुकुन। अब इसमें कौफ 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 ज्यादा, थोड़ा सा बोलने में भी मुश्किल, लिखने में तो खैर उतना मुश्किल नहीं होगा, बोलने में रवानी में थोड़ा सा मुश्किल है। बस इसको ये समझना है हमने कि ये जो टेबल है, इसमें ता हमें अगर नजर नहीं आ रही तो ये अलाउड है कि बोलने के लिए किसी चीज को ज्यादा कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसके अगर खोले जाएं हरूफ तो ये बहुत ज्यादा सारे हैं, इसमें 2 दफा तो शीन ही आ गया है। ठीक है, और इसके बाद फिर कौफ है, फिर कौफ है, फिर कौफ है, ये बहुत बड़ा सा लफ्ज बन जाता है। इन 2 को जोड़ लिया, इन 2 को जोड़ लिया। ठीक है क्या जी, अब इसको दे दी, ये जो ता की जगह पर हमने इसको डबल यूज कर लिया, बाकी फिर उसी तरह से उसके रूट लेटर पूरे कर दिए। ये सिर्फ समझने के लिए, और इंशाल्लाह ये इतने अच्छे आपको समझ में आ जाएंगे कि आप भी समझाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम अगले वर्कबुक में ये नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ फिर इसको छोड़ दें। ठीक है, थोड़ा सा हमने खोल के देख लिया कि इसको कैसे बनाया जाता है। हमारे पास है, हमने लिखना है। आपने लिखना है, आपको लिखा हुआ भी भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद है फयखरुजु, फयखरुजु, खराजा यखरुजु। अच्छा जी, ये है तो निकलता है। अगर ये होता फ, इसके बाद होता युखरिजु, तो फिर क्या माना हो जाता? वो निकालते हैं। वो निकालते हैं, क्योंकि हमने कहा अखरज है पैसे तो कोई निकाले। ठीक है, निकाला, उसने निकाला, ये है वो खुद निकला। अब क्या हुआ है, पत्थर फट गए हैं तो पानी निकला। पहले क्या था, पानी की नहरें फूट गई थी। ठीक है, अब ये दूसरी तरह के पत्थर हैं। पहली किस्म में पानी ने पत्थरों को फोड़ दिया, अब ये पत्थर फूट पड़े तो पानी निकला इनमें से। मिनहुल माई, और बेशक उनमें से अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं, यानी कि जिनके ऊपर नसीहत की जाए की जाए की जाए तो उनपे एक ना एक दिन असर हो ही जाता है। जी सिस्टर तौहीद। ये जी मजहूल क्या नहीं, चीज हुई? मजहूल नहीं। मजहूल के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी, मजहूल का मुदारे जब भी आपको नजर आए, जैसे हम कहते हैं युखरिजु, किसके जैसी आवाज है, युस्लिमु की तरह। जी और अगर हम इनके बनाते हैं मजहूल, अब मजहूल में पेश होती है ना, निशानी होती है। तो अब जी ये 3 हमारे ऐसे हैं फेल जो पेश से जिनका मुजारी शुरू होता है। अब इनकी तब्दीली कहाँ आ जाती, जो पहचाने जाते हैं। ये आ जाता है युखरजु। ठीक है, इसी तरह से इसका बन जाएगा
युस्लमु। ये कोर्स 4 की बातें हैं जो मैं आपको कोर्स 3 में बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी देखना है। अगर ये होता युखरिज, ठीक है, युस्लिमु, इसी तरह से ये बन जाना था मजहूल का सीगा। ये हमारे पास है सिंपल वाला, और ये कौन सा है? खराजा यखरुजु। अब ये किसके जैसा है? ये यंसुरु अच्छा नसरा नसरा नासारा यंसुरु। अब आपको एक और मजे की चीज बताती हूँ। ये हमारा हो गया मजीद भी ही। अब मैं आपसे कहती हूँ कि नौसरा यंसुरु, हमने इसको किया है मजहूल में नुसीरा युनसरू। अब आप मुझे इसका बना के दिखाएं। खराजा खराजा युखरिज खराजा खुरीजा यखरुजु यखरुजु खराजा खुरीजा यखरुजु युखरजु आपने मुझे खारिजुन मजहूल को पेश से शुरू करना है। खराजा और खुरीजा युखरजु युखरजु। अब ये देखे मजीद भी का और ये एक जैसे हो गए। ठीक हो गया। ये अब हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तर्जुमा बताएगा, टेक्स्ट बताएगा कि मजहूल का कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, मजहूल में आपने अगर आपको एक जैसी पेश 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 नजर आ रही है तो आपने देखना है कि मुदारे में आपको जेर नहीं नजर आएगी। मुदारे का जो दरमियान वाला कलमा था ना, इसमें से आप या को छोड़ दें, ये मुदारे की अलामत है। नून सौद और रा, हम कहते हैं यंसुरु, फिर हम बना देते हैं यंसारू। ठीक है, इसके ऊपर जबर आ जाती है। तो इसको हमने इस वजह से भी गड़बड़ नहीं करना कि ये मजहूल है या ये मालूम वाला। मारूफ भी कहते हैं, मालूम भी कहते थे। ठीक हो गया। तो निकलता है, इसका तो सिंपल तर्जुमा ही देखें। खराजा वो निकला, यखरुजु वो निकलता है या निकलेगा। अब क्या निकलता है? जैसे हम कहते हैं समी अल्लाहु। अब ये जो माऊ के ऊपर पेश है, हम उसका वो निकलता की बजाय तर्जुमा कर लेंगे पानी निकलता है। बस निकलता है मिनहुल माउ। अगर आपको दे दिया जाए फयखरुजुल मिनहुल माउ, कितने टुकड़े कर लेंगे? 1 2 3 4 5 आपने बना 6 लिया टुकड़े। +1 +1 +1। अलमा एक ही है। अलमा तब इसको अलग करेंगे अगर हमने अल को अलग करना हुआ। ठीक है, ज्यादातर ये टुकड़ा अब दिया नहीं जाता क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ही रह जाती है। तो फिर अगर इसको एक टुकड़ा कंसीडर कर ले तो ये यहाँ तक 5 टुकड़े बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उनमें से कुछ हैं। अब ये तीसरी किस्म के। अब एक दिल थे, वो कैसे थे? उन पत्थरों की तरह जिनमें से वो जो नहरें फूटती हैं। दूसरे दिल कौन से? जो खुद फट पड़ते हैं फिर पानी निकलता। अब ये तीसरे हैं लामा, अलबत्ता वो वाले जो कौन से? यह भी तो हम करके आए हैं। जो जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था इहबितू, तो उतर जाओ तुम सब तो के सब। हाबत हाबाता यहबितू, बाब बहुत से आ जाएगा तो कि जो गिर पड़ते हैं, नीचे उतरते हैं, गिर पड़ते हैं। ठीक है, मीन। चले अब हम यहाँ से देख लेते हैं। वह इन्ना, और बेशक, मिन्हा, कुछ उसमें से, लमा, जो है यह भी तू, गिर पड़ते हैं। अच्छा जी, ल और मा, ये भी 2 टुकड़े। मिन और हा 2 टुकड़े। यह भी तू एक पूरा फेल मुदारिस के टुकड़े नहीं होंगे। मिन एक पूरा हर्फ। उसके बाद है खशिया। खशिया का भी ता नहीं अलग करना। खशिया क्या था? अल्लाह ताला का डर। खशिया यख्शा हमने एक टेबल भी किया हुआ है ना। अल्लाह, अल्लाह के डर से। उसके बाद है वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमने माँ का एक माना नहीं वाला पढ़ा, ये वो माना यहाँ पर यूज हो गया। ठीक हो गया जी। नहीं है अल्लाह, क्या नहीं है? बी गाफिलिन, गाफिल, बेखबर। अम्मा, अम्मा को खोलें जरा। अन और मा अम्मा
अन और अम्मा मा। माँ अन प्लस मा, क्योंकि ये अरबी का जो तजवीद का रूल है ना, इसमें हम इसको हज़फ कर देते हैं, तो इसलिए इसको हम अम्मा, आवाज हमने निकालनी है मीम वाली, तो इस मीम को, इस नून को मीम में बदल दिया जाता है, और फिर जब 2 मीम हो गए तो इसको तशदीद देकर बना दिया जाता है अम्मा। तो टुकड़े करने हो तो ये आप अपने पास लिख लें, बुक के ऊपर ही लिख लें, जहाँ पे अम्मा लिखा इसके साथ लिख लें अन प्लस मा, ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए। मजीद अगर आपने इसको खोल के इसको समझना है तो इसको ऐसे लिख लें, अम प्लस मा था, तो अब ये 2 मिला के तशदीद से ये अम्मा बन गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद है तामालूना, ये जाना पहचाना कौन सा टेबल है? अमल आमिला आमिला सामिया। क्योंकि हमने ये जरा QC1 में किया था ना, तो इनको थोड़ा थोड़ा हमने इसी तरह से याद रखना है कि ये कौन से टेबल है। ठीक हो गया जी। अब टुकड़े यहाँ पर बी और गाफिल, ये भी हम 2 टुकड़े बना लेंगे। अब ये वो तीसरी किस्म के दिल हैं कि जो अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ते हैं, यानी कि खौफ से वो नेकी की तरफ आ जाते हैं, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। ठीक हो गया जी। अगर कोई यहाँ पे कोई चीज समझने वाली है तो उसको हम देख लेते हैं, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टर, वो जो आपने 3 पत्थरों की बात की, वो जरा दोबारा बता दीजिए। मैम मैंने लिखा है, जरा मैं आपको बताऊं तफसील से इसमें। हाँ, नंबर 1, एक को पानी ने फाड़ा मैं और दूसरा फट गया, और दूसरा खुद फट गया और उसमें से पानी निकला, और तीसरा जो गिर पड़ा तो खौफे लाई से, और जहां से वो गिरा उस खाली जगह से पानी निकल आया। असद ये बात बोले, हम यहाँ पे लिखते हैं एक को पानी ने फाड़ा, पानी ने फाड़ा, नंबर 2 को फट गया खुद, और खुद फटने से फट उसके गया, अंदर ठीक है। से पानी निकल पड़ा। अब ये जो खुद, यहीं पे रुकिएगा, और ये जो खुद, हाँ अब ये रुके जरा। अब ये जो खुद फट गया, इसको आपने इससे याद रखना है, क्योंकि तदब्बरा में हमने कहा है कि खुद से तदब्बर करना, खुद से गौर करना है। ठीक है, ये तशदीद इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तदब्बरा, बली आती है। ठीक है, तदब्बरा से तशक्क़क़, और नंबर 3 जो है वो गिर गया खौफे लाई से, तो जो उसकी जगह खाली हुई वहां पीछे पानी था, तो उधर से पानी निकल आया, नहरें चले जी या ठीक हो गया, चश्मा। चले जी ठीक हो गया। वो गिरा है तो अब उससे चश्मा निकल आया। ठीक है जी। ये अगर आपके आसानी के लिए सिस्टर निखत ने आपको एक छोटा सा बना के दे दिया। अच्छा जी, अब हमने ये याद रखनी बातें कि 3 किस्म के जो पत्थर बताएं, ये 3 तरह के दिल है। पहले दिल कौन सा है? जो जिसके अंदर खुद ब खुद जैसे वो हो जाता है ना, कि जिसके अंदर कुछ ऐसी मौजें हो कि जो मजबूर करे, जैसे जिसको हम कहते हैं ना, जमीर की बात भी जो होती है, मलामत करे तो फिर हम समझते हैं कि अच्छा करना चाहिए। और एक वो था अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल जाती है। ठीक है, वो पत्थर फट जाते हैं, फिर उनमें से क्या होता है कि वो हिदायत की तरफ आ जाते हैं। और एक ये होते हैं जो तीसरी किस्म के होते हैं, इनमें अल्लाह ताला की बातें डायरेक्ट असर करती हैं। ये वो है जो जाहिर सी बात है, इंसान गलती गुनाह का पुतला है, गलती हो जाए तो उसके दलाइल नहीं लाते, बल्कि अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करते हैं, और नेक्स्ट टाइम उस गलती को दोहराने की बजाय अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा मांगते हैं, यानी कि दोबारा ना करने का अहद करते हैं। अब ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं, जिनके दिल अल्लाह की डर की वजह से, या जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वही लोग कामयाब है। अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह किसी भी चीज से बेखबर नहीं है जो कुछ तुम करते हो। तो फिर ये तीसरे लोग अनामता में से होंगे ना? आपने डायरेक्ट किया ना, कि डायरेक्ट हिदायत मिलती है जिन्हें। हाँ जी, जिससे दूसरों को भी हिदायत मिल जाती है, चश्मे निकल पड़ते हैं। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, अपने दिलों में नरमी पैदा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अल्लाह को याद करते रहना है। अच्छा जी, ये तुम छोड़ ही गए, हमने पढ़ा ही नहीं
यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की तमाम मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज्जत को जानती है, इसकी तस्वीर बयान करती है, इससे डरती है। मसलन अब ये जो यहाँ पर बात बताई कि अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब उनको दिखाया, अपना दीदार कराया, तो अब ये जो तूर नामी पहाड़ी थी, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो ये जलकर खाक हो गया, स्याह रंग का हो गया ना ये। अब जिन लोगों ने तो वहाँ की ज़ियारतें वगैरह की, उनको तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, जो लोग वहाँ पे रहने वाले या जो वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, वो तो इसके बारे में मज़ीद तफसील से बता सकते हैं। हम लोगों ने किताबों से या कुरान मजीद से जैसे ये पढ़ा, तो हमें ये ना मतलब यकीन तो है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ यकीनन है वहाँ पर मौजूद। अब ये बात यहाँ पर जो याद रखने वाली वो ये है कि अल्लाह ताला को देखे बगैर ही अल्लाह ताला की अज़मत दिल में होनी चाहिए, और जैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है अल्लाह पर, किताबों पर, रसूलों पर, इसको मज़ीद मुस्तहकम करना है। अच्छा जी, एक हदीस ले लेते हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे, उस दिल से जो तेरे सामने ना झुके, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना हो। इसको एक नज़र में अच्छी तरह से देख लें, ठीक है? ये फिर आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, पहले कोई एक अगर सिस्टर तिलावत करना चाहती हैं तो करके साथ ही उसका तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज कर लें। जी मैं करूं? कोमल को कहा था मैंने, अगर वही है तो सिस्टर कोमल को मैंने मुझे कहा था। आपका नाम क्या था? चले जो भी है कर ले। अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग मैं करूं या उन्होंने करनी है? जिससे भी करनी कर ले, शुरू कर ले बस। सिस्टर अऊज़ु दोनों से बिल्लाहि करवा लें बारी बारी। वो दूसरी सिस्टर की आवाज ही नहीं आ रही, एक ही सिस्टर कर रही बता रही है, चले कर रही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माउ व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वा और इन्ना बेशक मिन्हा उनमें से कुछ लमा अलबत्ता वो हैं जो यशक्ककु फट पड़ते हैं, फयखरुजु तो निकलता है, मिनहु उनसे, अलमाउ पानी, वा और इन्ना बेशक मिन्हा कुछ उनमें से लमा अलबत्ता वो हैं जो यह भी तू गिर पड़ते हैं, मिन से, खश्यतुल्लाह अल्लाह के डर से, वा और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे जो, तामलून तुम करते हो। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बस आपने बात का ख्याल रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अच्छी तिलावत की। आपने इस वाले को जेर की वजह से पुर नहीं पढ़ना, इसको अपने बारीक पढ़ना है, ठीक है? जब अल्लाह ताला के नाम से पहले जेर आ जाए तो बारीक, खशियतुल्लाह। खशियतिल्लाह, ठीक है? और जबर और पेश दोनों सूरतों में वमल्लाहु, ठीक है क्या? ठीक ये है, आप जहां जहां पे आप जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, इसमें जलाला पढ़ेंगी ना, वहां वहां आप इसको खास तौर पे हाईलाइट करके थोड़ी 4-5 दफा 6 दफा 7 दफा इसकी करेंगी ना बार बार प्रैक्टिस, इंशाल्लाह बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा। जेर के साथ बारीक और जबर और पेश दोनों के साथ इसको हम पुर करके मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है क्या जी? अच्छा जी, तर्जुमा हमने देख लिया, जज़ाकल्लाह। असबाक और इसके प्लान वगैरह वो। अब दुआ पे आ जाएं। कोई एक सिस्टर हैंड रेस करें, हम उनसे इसका तर्जुमा करवाते हैं। कौन करना चाहेगा? मैं पढ़ूं? आसान जी। अल्लाह। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं आऊज़ु, पनाह मांगती हूँ। हाँ मैं, आप इसको तर्जुमा वो वाला कर लें जो हमने टेबल किए में, मैं पनाह मांगती हूँ
تو اس کے بعد بیکا 7 تیری، ٹھیک ہے، بیکا بیکا آپ سے، تجھ کا سے، من، من سے علم ہاں جی ٹھیک ہے، علم علم کا علم کر لیں لا گے، نہیں تنفعو جو نفع دے ومن اور سے قلبن قلب لا نہیں یخشعو خشیت دے ومن اور من سے نفس نفس لا نہیں تشفعو جو قناعت دے ومن اور جو دعوتن دعا لا نہیں یستجابہ جو قبول ہو لہا اس یعنی کی کہ ہاں جو ایسی مجھے ایسی دعا نہ ہو جو قبول نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی، قبول نہ ہو. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا، میڈم یہ تشبہ کا ہمیں بتا دیجئے کہ روٹ ہاں کیا ہے اور ہاں یہ اب آپ کو میں ایک اور مزے کی چیز بتاتی، میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس کو غور سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کی ویسے بک میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ ابھی ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، یہ سارا پہلے ترجمہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، یہ دیکھیں یہاں پہ آگے، ٹھیک ہے، اب یہ جو سسٹر نے کیا ترجمہ، وہ اپنی طرف والا یعنی کہ ہم فیمیل ہیں اس طرح سے کر لیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، ٹھیک ہے، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ دعا اس کو اردو میں بھی کہہ کے مانگ لیا کریں اپنے لیے، بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچانا جو فائدہ مند نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، یعنی کہ ڈر سے، خشیت سے، اور اس نفس سے جو آپ نے یہ جو تشبہ پوچھا نا، سیر نہ ہو، یعنی کہ آسودہ نہ، جو برے نہ، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ فٹ کر لیجئے، پورا اس کا صحیح مکمل ترجمہ بن جائے گا. تشبہ ہوتا ہے بھر جانا، ٹھیک ہے، جو ہر وقت جس میں لالچ پڑا رہے، مطلب ایسے نفس سے بچا، اور استجاب کہتے ہیں نا دعا کا قبول ہونا، اس میں کا پھر مصدر کیا نفس ہوگا؟ مطمئنہ کی دعا کا ہے نا. مصدر کیا ہاں جی، ہوگا؟ اس کا تشبہ کا مصدر، تشبہ کا آسودگی، اس کا مصدر آسودگی لکھ لیں، آسودگی، نہیں، مطلب تو پتا ہے، مصدر اس کا کیا ہوگا؟ تشبہ مصدر، کا اچھا چلیں اس کو ہم پورا دیکھ لیں گے، شین با عین، اس کا یہ ہوگا مادہ، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم پورا اس کے اوپر اتار کے گروپ میں اس کو شیئر کر لیں گے. اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں جتنے بھی اسماء اور افعال. پہلے ہم دعا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا. یہ میلز کے لیے، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم جب جاتے ہیں میت والے گھر میں تو تب ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یہ دن ہم پہ بھی آنا ہے، آج یہ ہے، کل میں نے اس کی جگہ پہ ہونا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دل نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. باقی یہ اسی طرح سے قبرستانوں میں جیسے اس پہ تھوڑا اختلاف ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. آگے بات کی بھی دواخانوں وغیرہ میں یا جیسے ہاسپٹلوں میں چلے جائیں جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے، یا آپ دیکھیں جیسے ہاسپٹلس میں ہم دیکھتے ہیں مریضوں کو، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اسی طرح سے جب کسی نابینا کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو، قرآن مجید کو، مصحف کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے. اچھا جی، قلب قلوب، اب یہ جو پلس کے نشان ہے یہ بتا رہے ہیں یہ جمع ہے کہ قلب قلوب، اور حجر حجارہ اور احجار دو طرح کے اس کے جمع والے آ جائیں گے الفاظ. اور جو شدید سے اشد، اب یہ ایرو بتا رہا ہے کہ یہ اس کی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اشدہ، اس میں یہ دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر سے اکبر، یعنی کہ بڑا اور بہت بڑا یا سب سے بڑا، وہ ایک وقت کمپیریزن آ گیا نا اس میں. ہم نے کہا تھا صغیر چھوٹا اور اصغر بہت ہی چھوٹا، ایسے شدید سخت اور اشدہ انتہائی شدید سخت ہو گئے، کہ سختی کی وجہ سے حد ہو گئی. تو ہم نے اس کو جمع میں نہیں لے کے آنا بلکہ
ये इसम की ही एक किस्म है, ये इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में इसको पढ़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम टच करते हैं ताकि ये अल्फाज जो कुरान मजीद में आए हैं, जब हम अपने इन अल्फाज को ग्रामर में पढ़ेंगे तो हमें इन आयात से याद आएगा कि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था, और फिर आप दोबारा उस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। जैसे अब हम QC6 में जो चीजें पढ़ रहे हैं, जब मैं आपके ये वाले जो आयात उनको निकालती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें, सारी सी बातें अभी हम टीचर से सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें अभी हमारे लिए नई भी हैं, उसमें कुछ अभी ऐसी हैं जो अभी हमें समझ नहीं आती, इंशाल्लाह समझने के काबिल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। अच्छा जी, फतह नकरा तो द्वारा मैडम शदीद की जमा तो नहीं ना होती कोई नहीं, भी, जमा नहीं। शदीद की जमा? बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जिनकी जमा नहीं होती, जैसे पानी की क्या जमा, कोई जमा नहीं है उसकी। इसी तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनकी जमा नहीं होती। एक नहीं, हम उर्दू में तो पानी को कहते हैं ना, पानियों का, पानियों का। नहीं, पानी को पानी कहते हैं। नहीं, नहीं, पानियों तो पानियों हम भी उस कहते सूरत हैं। में यूज करते हैं जब आगे पीछे कोई उसके लगाने हो, कोई फिक्रे बनाने हो ना। लेकिन बजाते खुद अगर हम कहें, जैसे अब हम किसी भी चीज की, जैसे इल्म की उलूम कर लेते हैं, क़ल्ब की कुलूब, इस तरह से जमा नहीं होती ना। अच्छा जी, चले हम आगे बढ़े। अब है खराजा यखरुजु, खुरुज, खारिज। अब जो निकला उसका डायरेक्ट किसी पर असर कोई नहीं पड़ा, तो इसका हम मफूल नहीं बनाएंगे। और वैसे भी हमने कहा वो वाला जो माना होता है ना, वो निकला, वो पलटा, वो गया, उसमें उसकी मफूल की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका अपने ऊपर ही असर पड़ रहा होता है। इसके बाद है खुरूज, निकलना, खुरूज, दुखूल, ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। अच्छा जी, इसके बाद है हबाता, यहबितु, इहबित, हाबित, महबूत, हुबूत। अच्छा जी, आपके लिए असाइनमेंट भी आपने मुझे बताना है कि खुरूज कहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा है, मार्केट्स वगैरह में कहाँ जहाँ आप कहीं नजर आए तो आपने मुझे बताना है। वो दरवाजे की एंट्री एयरपोर्ट एग्जिट, पे एयरपोर्ट्स पे, एक एयरपोर्ट दरवाजे की एंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। खुरूज। एग्जिट लिखा होता है ना, दुखूल भी होता है ना, सऊदी में और मगरिज लिखा होता दुखूल और खुरूज, ये ठीक है, आपस में जिद हो गई, यानी कि एक दूसरे के एग्जिट, तजाद। एग्जिट। एग्जिट तो ठीक है। गफला, यगफुलु, उगफुल, गाफिल, मगफूल और गफला। ठीक हो गया जी, वो गाफिल हुआ या उसने गफलत बरती। आमिला, यामलु, इअमल, आमिल, मामूल और अमल। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये जो सेहतमंद होते हैं इनमें हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है, नौसरा द्वारबा स्वामिया, और ये कौन सा है, फतहा, नौसरा द्वारबा स्वामी, इन पे ये पूरे आ जाते हैं। किसी कोड शोड की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पर हमें कोड चाहिए, ठीक है। कसा, यकसु, उक्सु, कासिन और डैश, कसावतुन और कसवतुन, दोनों इसके मसादिर आ जाते हैं, और ये कहीं कहीं कुसूबन भी आपको नजर आएगा। इसी तरह से खौशिया, यख्शा, इख्शा, खौशिन, मखशियुन और खशियत, खशियतुन, ये अभी हमने जिसमें पढ़ा भी है। ठीक हो गया, ये है रौदिया पे, और पीछे अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये बाब सामिया से बनेगा। जैसे दआ में हमने कहा कि ये कोड है, जबकि ये टेबल मेन बाब इसका कौन सा आ जाएगा, पेश ने बता दिया, ये हमारा नौसरा पे है। अच्छा जी, तदब्बर पे तफज्जरा या तफज्जरा, तफज्जर, मुतफज्जिर, मुतफज्जर जरूरत नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ के डैश तफज्जुरु। आप अपने टेबल की रवानी के लिए बनाना तो बना लें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया जी। और ये जो है शक्का का, ये इंशाल्लाह आपको लिख के उसमें डाल दिया जाएगा ग्रुप में। वो डाल दिए। अच्छा, डाल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। बी पार्ट पे आ जाते हैं। एक लेसन है हमारा और एक ही टेबल हमारा रह गया है, यानी कि जितने हमने सीखने थे हमने 8 तरह के सीखे, फिर उनके मजीद हमने सीखे जिसमें से कमजोर हरूफ वाले। इसी तरह से आज का जो हमारा टेबल है ये है इस्तकामा। तो थोड़ी बहुत आवाज इसकी कहाँ जा रही है, इस्तग़फर, इस्ताआजा, इस्ताआजा, इस्तग़फर, इस्तग़फार, इस्तगफर, इस्ताआजा, इस्तिफाल, इस्तिफाल, इस्तगफर,
इफ़आल, ठीक हो गया जी, ये हमारा बाब हो गया और ये वो जो पहला टेबल हमने किया था, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें इस ही रहेगा, इसका जो कोड होगा ना वो इस, ये हमारा कोड रहेगा। सिर्फ 1 मिनट की मुझे ब्रेक चाहिए। चलिए चलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इस तकफरा जैसा है और इस पे हमने क्या करना है, यहाँ से निकालने हैं रूट लेटर। इस तकफरा के क्या थे रूट लेटर? फारा और माना क्या था? मगफरत, उसने मगफिरत मांगी। मांगी या चाही, इस तरह, ठीक है, मांगी भी ठीक है, चाही यानी कि किसी चीज की तलब है इससे, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले जो 3 थे ये तो मजीद भी की ज्यादती थी। पीछे क्या हमारे पास बच गया? खौफ अलिफ मीम। कौमा। अब काफ वाव कौमा मीम। के, अब ये जो अलिफ होता है ये तो या तो वाव की बदली हुई शक्ल है या फिर ये या की है। काफ गेस कीजिए। कौमा का टेबल हम वाव कर मीम। वाव मीम। वाव। हमने कौमा भी किया और कौमा भी किया, ठीक हो गया जी। अब ये यही रूट लेटर हैं, हमने इसको कर लिया कमजोर पर, उसके बाद अकामा हमने कर लिया असलमा वाले बाब पर, ठीक हो गया जी। कामा वो खड़ा हुआ, और इसका हम मिसाल क्या ले लेंगे, खुद कामती सला, ठीक है, नमाज अलबत्ता सलात। खड़ी हो गई। अकामा उसने खड़ा किया नमाज के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इसको जोड़ लेंगे, वो जिसको हदायत दे वो ही खड़ा कर सकता है नमाज के लिए, उसने खड़ा किया, ठीक है। अब इस्तकामा में कुछ चाहने वाला माना आ जाएगा, वो साबित कदम रहा। अब साबित कदमी ये कैसे होगी, ये इसमें एक तलब है, एक अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। अब साबित कदमी या वो सीधा हुआ, कैसे सीधा हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली तब वो सीधे रास्ते पर चला। जैसे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, ठीक हो गया जी। तो अब हमने ये जो रूट लेटर कॉफ वाओ मीम, इसको हमने इस्तगफरा वाले टेबल पे उतारना है। अब चूंकि यहाँ मसला क्या है, इस्तगफरा और इस्तकामा में चेंज क्यों लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक जो लेटर है वो है कमजोर। अब ये जो कमजोर लेटर है इसकी वजह से थोड़ी सी तब्दीली आ जाती टेबल में। अब इसमें हमने अकामा अरादा वो जो तब्दीलियां की थी उसी को थोड़ा सा मजीद तब्दील करके बना लिया, इस्तकामा इस्तकामु। तब्दीलियां वही वाली आएंगी। अकामा का टेबल चाहे आप अपनी बुक्स वगैरह निकाल के सामने रख लें, अकामा का टेबल अपने सामने रखिए। वैसे तो इस्तकामा का भी लिखा होगा आपकी यकीनन बुक में, आप अकामा का जी बुक पे निकालिए। लिखा हुआ है, हाँ, इसको ये मजीद समझना आसान इस्तकामा हो। का लिखा हुआ है। इस्तकामा का लिखा हुआ आप अकामा का निकाल लें ताकि हम जी मजीद उसको समझ लें। क्योंकि ये मैं इधर शेयर तो करूंगी, जाहिर सी बात है मैं उसको समझाती भी हूँ आपको, लेकिन ये कि तब्दीलियां सारी वही है, वो आपको 2 टेबल इकट्ठे याद हो जाएंगे। चलिए जी हम आ जाते हैं इस्तकामा। ये जो अल्फाज है, इस तरह के जो अल्फाज, ये 47 अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं। इस्तकामा को आप इस्तकामत से भी याद रख लें, ठीक है क्या जी। ये सारी वही तब्दीलियां। अब आपने इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, आपका आगे जितना भी कोर्स 4, 5, 6, 7 जितने भी कोर्सेज हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि तफ़ईल अगर फौरन जैसे फ़अला युफ़इलु ये तो हमने किए भी नहीं, जहन में नहीं आएगा, तो हमने तालीम पे चले जाना है, ठीक है। तफ़ईल से तालीम पे आके अल्लामा,
उससे बहुत आसानी से आप उसको कैच कर सकेंगे, उसे आप पहचान सकेंगे। तो इसीलिए ये जो पूरी आपकी फ्रेज है, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, या तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इसको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये हमारी बेस है, इन पे हमने मस्दर बनाए हैं, और वो जो मस्दर हैं उन्हीं के हमने नाम वो इस तरह से रखे हैं बाबे तफील, बल्कि हमने नहीं रखे, वो नाम इसी तरह से है, असल में एक्चुअल जो उनके नाम है वो उसी तरह से है। आसानी के लिए हमने इनको जोड़ लिया है। अच्छा जी, ये अगला है कि तदब्बुर कीजिए, यानी कि गौर व फिक्र करें, किसमें कुरान मजीद में करें, हदीस पे करें, गौर व फिक्र करें, कायनात पे करें। और तदारुस यानी कि एक दूसरे के साथ तदारुस कीजिए, ताकि क्या हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ जो हमने वापसी जो है रास्त, वो उसकी तरफ हमारा इनकिलाब बेहतरीन हो जाए। ठीक है क्या जी। इसके साथ अब ये जो टेबल थे ये हमारे 8 वजन है। इन पर जिस तरह से हमने फतहा, नफरा, द्वाराबा, स्वामिया वाले टेबल्स पर कमजोर हरूफ वाले, कमजोर मादा वाले अल्फाज को उतार के थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ टेबल अपने कंप्लीट किए थे। जैसे अगर फतहा और वाहबा, अगर आपको माजी में कोई तब्दीली नजर नहीं आई तो यफ्ताहु यौहबु नहीं किया, बल्कि हमने उसको जो एक जबर थी उसकी वजह से हम वाव नहीं पढ़ सकते थे, यानी कि जबर और वाव आपस में थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है, तो वो जो कमजोर हर्फ होता बजाय उसको एक हरकत दी जाए, उसको निकाल के यहब पढ़ दिया जाता है। ठीक हो गया। अब ये थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हमने मजीद फीही में भी की हैं। अच्छा जी, इसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारे टेबल कर चुके हैं, आज हमारा इस्तकामा है, एक टेबल इसके बाद है, और इंशाल्लाह वो हमारा कल कंप्लीट होगा। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी होगी। यहाँ पर इस्त, ये है इस्त, शुरू में इस्त लगा दिया गया, वो सीधा हुआ, वो साबित कदम रहा, वो डटा रहा। ठीक हो क्या जी। गौफरा यानी कि ये जो हमारे टेबल हैं जिनको हम सलासी मुजर्रद वाले कहते हैं, गौफरा। ठीक है। इसके बाद है कौमा, इन्हीं को हमने कुछ और पैटर्न यानी कि मजीद फीही पर उतारा। अब अगर आपके सामने अकामा का टेबल है तो उसमें देखिए अकामा से अकामू, फिर उसके बाद क्या बना है, बोलते जाए। अकमता, हाँ, कम अकामा, कमता अकामू, हाँ जी। अकमतु, अकमतुम, अकमना। अब ये देखिए, उसी को आप अकमतु, इस लगा लें, उसी को आप टेबल को इस लगा लें, सारी तब्दीलियां वही हैं। इस्तकामु, ठीक है। इस्तकामा, इस्तकामू। ठीक है। अकामा, अकामू की तरह। फिर हमने कहा अकमता, अब उसको इस्त लगा लिया, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना, और इस्तकामत। तो मैंने कहा भी इस्तकामत पढ़ते ना उर्दू में, ये वही इस्तकामत है। आज उसका पूरा आपने माजी के सारे जितने भी सीखे पढ़ लिए, कुछ और मजीद है वो इंशाल्लाह QC4 में हमने कंप्लीट कर लेने। वो सारे हम करते इसलिए ना, उनकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुरान मजीद में जितने यूज हुए ज्यादातर वो यही 6 सीखे और एक मुन्नस का 7वां सीखा, वो कम आया, इसलिए उसकी आगे फिर जमा वगैरह कम बनाई जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसको देख लें कि ये पहले हमने कहा था कामा, कामू, फिर उसके बाद जो उसकी तब्दीलियां थी वो हमने किस तरह से की थी, हमने कौला की तरह। ठीक है। कौला, कौलू, कुलता, उसमें हमने कहा था कुमता। अब ये वही कुमता, और इसी तरह से अकमतु, ये जो आगे काफ, मीम और ताई, उसी तरह की तब्दीलियां, थोड़ा सा पीछे से हम अल्फाज को हेर फेर करते हैं, अगली तब्दीली वही होती है। ये तब्दीली चलती है मुदारे में, यही तब्दीली आपकी आ जाती है फेल अमर और नहीं की जमा वगैरह बनाने में। तो इस एक टेबल को अगर आप याद रखेंगे तो उसके साथ आपके 3 टेबल अच्छे से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इस्तकामा, इस्तकामू, वो साबित कदम रहा, वो सब साबित कदम रहे। इस्तकमता, इस्तकमतु, आप साबित कदम रहे, मैं साबित कदम रहा। इस्तकमतुम, आप सब साबित कदम रहे। इस्तकमना, हम सब साबित कदम रहे। और इस्तकामत, वो औरत साबित कदम रही। अच्छा जी, अब सब अनम्यूट करेंगे। हल इस्तकामा,
نعم استقام نعم استقام استقامة अब इसमें भी तब्दीली देखें वही है, ये हमजातुल वसल है और इसको गिराया जा सकता है। दूसरी तरह भी पढ़ सकते हैं, हल इस्तकामा, हल इस्तकामू, ठीक है, जैसे हम जवाब में पढ़ते हैं नाम हल, नाम इस्तकामो, ठीक हो गया जी। हल इस्तकमता, नाम 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 इस्तकमतु, इस्तकमतु, हल अमतु इस्तकमतुम, नाम नाम इस्तकमना, इस्तक़मना इस्तकमना, ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा मैडम माजी है। जवाब में तो हमें हलफ हलफ वसली के नीचे जेर लगानी पड़ेगी हाँ जरूर। हाँ जी, वो ना टेबल ना को वापस ले हाँ, आए। वो जरूर, वो वैसे नहीं पढ़ा जाएगा वरना। हाँ, वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या जी, अच्छा जी, जिस तरह से हमने बनाया था युकीमु, ठीक है, उसी तरह से अकामा युकीमु, इस्तकामा यस्तकीमु। सिस्टर तौहीद का भी हैंड रेज है जी सिस्टर। जी, वो मैंने पूछना था, ये जो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो जब इस्तकामत लिखेंगे तो अलिफ रहेगा, है ना? बस ये पूछना था, मैं आपको आसान सा ये बताती एक काफ के साथ जो अलिफ। सिर्फ मैडम यहाँ, ये मुन्नस के लिए कैसे लिखेंगे? ये या देखो सिर्फ यहाँ पर ता लगा, इस्तकामत, सही सही ठीक है, इस्तकामत, बस इसके साथ ता लगाते नहीं, जितने भी मीम हो, ता, कमजोर हो, आपके जज़म, सेहतमंद हो, मजीद भी हो, पूरा का पूरा ये ठीक है, आपका पहला ठीक हो सीगा गया। हुआ वाला आपके हिया में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना जाहिद, मुअन्नस क्या बनाते हैं? जाहिदा, ठीक है, ये पूरा जाहिदा। का पूरा हम्म, नाम शामिल रहता है, आगे एक मुअन्नस की निशानी लगा दी जाती है, ठीक है। अफआल भी ऐसे ही होते हैं, ठीक। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है यस्तकीमु, वो साबित कदम रहता है या रहेगा, यानी कि मुस्तकबिल वाला भी हमने यहीं पे फिट करना है। यस्तकीमु, यस्तकीमुना, तस्तकीमु, अस्तकीमु, तस्तकीमुना, नस्तकीमु और या तस्तकीमु, ठीक हो गया जी। यस्तकीमु, यस्तकीमुना, तस्तकीमु, अस्तकीमु, तस्तकीमुना और नस्तकीमु। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने रख दूं इस्ताना, इस्तानु, इस्तनाता, सॉरी ये वाला मेरा अपना ही गड़बड़ हो गया, इस्तनाता, इस्तनातु, इस्तनातुम, इस्तनाना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यस्ताइनु, यस्ताइन, यस्ताइनु और यस्ताइनुना, ठीक है। तस्ताइनु, अस्ताइनु, नस्ताइनु, नस्ताइनु कौन सा बनता है? ये अपने वाला तस्ताइनुना और नस्तईन, या कहाँ पढ़ तस्ता, दिया हमने नस्ताइनु? नस्तईन, इय्याका तमाम, नस्तईन। इय्याका नस्तईन, अब आपका, जब आप ये नस्ताइन देखें तो आप कहेंगे ये किसके जैसा है? ये इस्तकामा जैसा है, अमा, ठीक है, ये इस्तकामा जैसा टेबल है, ठीक, क्योंकि इसमें सारी तब्दीलियां वही हैं जो इसमें हुई हैं। और ये टेबल पढ़े कम जाते, इसमें रवानी भी कम आती है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा मैम मुदा, आप ये जो नीचे एक हमें दिया हुआ है तो इस्ता, तो वो इसकी करेंगे, ये जो इस्तात है, हाँ, इस्तात ये मुन्नस हुई इसकी, ये मुअन्नस, इस्तात ये ये मुअन्नस क्या है, हुआ? आइन ते बिल्कुल, इस्तात, इस्तताअत, ठीक है, ये वही जो हम ये उर्दू में भी उर्दू यूज में करते भी हैं, यूज होती है ना उर्दू में भी यूज इस्तात? होते हैं, उर्दू में इस्तकामत भी यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज हमारे उर्दू और अरबी के एक जैसे हैं, जैसे हमने बनाया था अकिम, इसी तरह से इस्तकिम, उसमें हम लगाते हैं अस्लमा वाला हमजा, ठीक है, जिसके ऊपर जबर है। अब इस पर लगा के इसके बाद किम लगा देना, ये भी वही तब्दीली हो गई, ठीक है। इस्तकिम, फिर इसके बाद इस्तकीमु, जैसे हमने कहा था अकीमु, ठीक है। अब ये जो या है ये वही वाली वापस आनी, ये मैं इसलिए आपको बार बार उसका दे रही हूँ
बार बार मतलब उसकी जो वजाहत करने की मैं कोशिश कर रही हूँ या मैं कह रही हूँ कि आप उसके साथ इसको रिलेट करें, इसलिए वो तब्दीलियां आपको याद रहेंगी। अकीमुस्सला, आप उसको अकीमुस्सला नहीं कहेंगे, जब आप अकीमुस्सला कहेंगे तो आपको पता होगा कीमु है, यानी कि इसमें एक या वापिस आनी है, और ये गलती ना हो इसलिए हमने इन टेबल्स को दोनों को इकट्ठे इकट्ठे रख के इसी तरह से पक्का पक्का कर लेना है। ठीक है, ला तस्तकीमु, तस्तकीम, ला तस्तकीमु, जैसे हमने कहा था अकीम अकीमु, ला तकीम ला तकीमु। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये है हदीस है, इसमें हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के मुतालिक ऐसी कोई बात बताएं कि मैं आपके अलावा इस बारे में किसी से ना पूछूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहो, क्या कहो, आमनतु, यानी कि आमनतु मैं ईमान लाया, टेबल हमने कर लिया, बिल्लाही अल्लाह पर, सुम्मा फिर, ये जो इस्तकीम यानी कि मैं फिर उस पर साबित कदम रहा, यानी कि ये हुक्म है कि अल्लाह पर ईमान ले आओ फिर उस पर साबित कदम रहो, तू रह। ठीक है, सुम्मस्तकीम, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और फिर इसके बाद उन्होंने हुक्म उसको बताया सहाबी को, सुम्मस्तकीम, तू फिर उस पर साबित कदम रह। अब ये जो साबित कदम रहना ये हमारा इस्तिकामा के टेबल से आ जाएगा। ज्यादा लोगों को कहना हो तो फिर क्या कहेंगे, इस्तकीम, और जवाब उसी तरह से इस्तकीम और अपनी तरफ इस्तकीम। अच्छा जी, हमारे पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा है। अच्छा जी, मुस्तकीम, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मुस्तगफिर की तरफ मुस्तकीम। हमने कहा था मुकीम, अब इसमें जो है मफूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो साबित कदम रहा वो खुद साबित कदम रहा, और इसकी जो हमने इकामा की तरह इस्तिकामा इसका मस्दर बना लेना है। अब आप जब इन दोनों टेबल्स को सामने रख के देखेंगे, मिलाएंगे, तो सारी जो इनकी एक एक जैसी बातें हैं वो दोनों पे आप लागू करके देखिएगा, दोनों को आप साथ रख के इसको पढ़ के देखिएगा। आज का टेबल इस्तकामा वाला और इस्तताअ वाला आप ऐसा कर लीजिए कि ग्रुप में सुना दीजिए। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, हम ये वाला काम कर लेते हैं, ये जरूरी है। हम टुकड़े बना लेते हैं, वो सब कायम रहने वाले हैं, और इसको एक हम तीसरा अलहदा टुकड़ा बना लेंगे। अच्छा जी, वो सब के लिए हम क्या अरबी यूज करते हैं, और कायम रहने वाले की हमने अभी क्या अरबी बनाई है, मुस्तकीम। अब इसकी जमा मुस्तकीमूना, मुस्तकीमूना, मुस्तकीमूना। ठीक हो गया जी। बिलहक, मुस्तकीमीन, ये यहाँ बिलहक भी हो सकता है। अल्लाह बेहतर ये है, आप ना ये जो नीचे आपको एक छोटा सा हिंट दिया जाता है ना, इससे कर लिया करें। ठीक है, बिलहक भी हो सकता है, बेहतर है कि हम इसको इसी तरह से ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बना लेते हैं, फा को अलग कर लें, इस्तकीम को अलग कर लें, कमा और आगे फिर उमिरता, बस साबित कदम, तुम साबित कदम रहो, बस तुम साबित कदम रहो जैसा हुक्म दिया है, जैसा तुम्हें हुक्म दिया, जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मजहूल है। ठीक है, ये पहला वाला है। वैसे तो अमारा से आमिरता किया था ना, तो ये नुसीरा की तरह उमीरा, फिर उसके बाद उमीरा उमिर उमिरता, ये वह जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया। बस तू साबित कदम रहो से आप ये ना समझ लें कि ये जमा वाला है। बस तू साबित कदम रह जैसे तुझे हुक्म दिया गया। अच्छा जी, अब आपने हाँ में जवाब देना है। नाम दीन, नाम इस्तकम ना इस्तकमना, अलद्दीन। ठीक है
जी हाँ, हम साबित कदम रहे किस पर, अलद्दीनी। अब पर वाला तर्जुमा है ना, तो बेहतर है कि अला लगा ले। ठीक हो गया जी। 1 मिनट है हमारे पास, हम ऐसा करते हैं, अपनी दुआएं पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग ऐसा कीजिए कि बारी बारी सब कोशिश किया करें। ये नहीं कि 2 लोग सुनाए, 3 लोग सुनाए, सब सुना दिया करें। 2 टेबल सुनाने, ठीक है, बारी बारी और आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। बेशक पहले लिख ले, लिखने के बाद सुना दें। यहाँ पर आ जाएगा इस्तता, ठीक है, इस्तता, इस्तता, इस्तताउ, इस्तताता, इस्ततातु, इस्ततातुम, इस्तताना और इस्ततात। ठीक हो गया। यस्ततियु, यस्ततियूना, तस्ततियु, अस्तइयु, तस्तइयु, तस्तइयूना, गलत गलत हो गया, नस्तइयु और हिया तस्तई, तस्तई, गलत, फिर से गलत हो गया। चले मुझे लगता तस्तती है तस्तती तस्तती को हमने ऊ भी लगा तस्तती दिया। ऊना हाँ नस्तती। हाँ, उसको हमने एंड पे पेश भी लगानी है। ठीक है, वो मैं कह रही जल्दी में मेरा भी खराब हो रहा, तो उसको हम इंशाल्लाह कर लेते हैं, उसमें ग्रुप में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेश नहीं लगाए ना हमारी मुदारे की, वो जो खराब हो जाती है। हम दुआ कर लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा, और हमें अपने टेबल्स में रवानी की अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम अच्छा व मैम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वर्कबुक जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? वो आपको इंशाअल्लाह जमा करवानी है, अपने फाइनल से पहले पहले करवा दें। ठीक है, अगले जो 2 हमारे सेशन होंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, वो हमारा होगा रिवीजन सेशन। आपके पास फिर वो वाला पूरा वीक है, कोशिश करें कि उसी में कर लें। मैम अगर अगर